ہو گئے تھے اور انگریزوں سے لڑ رہے تھے تو مسلمانوں کے اندر ڈھونڈ کس طرح ڈالی انگریزوں نے کہ کبھی تو چھوٹے نبی کو بنا دیا، کبھی مسلمانوں کو لالچ دے کر کچھ بنا دیا، اس طریقے سے وہ ڈالی چاہیے اور مسلمانوں کو تر بتر کر دیا۔ کیا حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کیا جائے گا جس کو 4 طالب علم مدرسے کو پیش کریں گے۔ میں دعوت دیتا ہوں کو آئے اور اپنا مکالمہ پیش کرے۔ الگ الگ سلام کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے چاچا رحمانہ کیا بات ہے؟ ارے چاچا ہمیں دور سے آج آپ کا دامن کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا پہلے تو ہم کھڑے کھڑے بات کر لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہے چلتا ہے۔ خیر سے آپ کو تو معلوم ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نبی دنیا میں آئے ہیں جو لوگوں کو سچی دین میں دعوت دیتے ہیں۔ یہی تو افسوس ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، کیا کسی نے آپ کو بتلایا نہیں؟ دیکھو چاچا، سوچو دنیا میں بہت سے نبی آئے ہیں نا، ایک اسی طرح ایک نبی نیا آیا ہے، کیونکہ کوئی نبی آتا ہے تو رسول کو سلاتا ہے اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے، پھر ایک نبی چلا جاتا ہے تو وہ قوم بھی بگڑ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نبی بھیجتا ہے۔ وہ نبی قادیان میں پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا نام زندہ ہے۔ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ جی فرمائیے، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں گورنمنٹ دلاوا کا رہنے والا ہوں، قادیان میرا گھر ہے، میرا نام قادیان ہے۔ میں ایک نبی کی تبلیغ کرنے نکلا ہوں تاکہ ان کی دعوت پورے عالم میں پھیلا دوں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ حیرت ہے کہ آپ ان چیزوں اس طرح کی بہت بات کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں، ہر زمانے میں اللہ نے قوم کی اصلاح کے لیے ایک نبی نے بھیجا ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی آتا ہے تو قوم کو سدھار اللہ نے ایک نبی نے بھیجا ہے، اللہ نے ایک نبی نے بھیجا ہے جو لوگوں کے ایمان کی صفائی کراتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم نہیں، ہر زمانے میں اللہ نے قوم کی اصلاح کے لیے ایک نبی نے بھیجا ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی آتا ہے تو جو لوگوں کے ایمان کی صفائی کرتا ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلم میں بتایا گیا ہے اور اللہ نے نبی نے بھیجا ہے۔ تو پھر خاتم النبی
तकरीर जो कुरान में लिखा है उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नाउज़ु बिल्लाह बेकार की बातें हैं कि इसका कोई मतलब नहीं। अगर इसका मतलब है तो फिर नई नबी के होने का सवाल ही नहीं होता। इट इज़ इम्पॉसिबल मिस्टर गोहियो आरान, ये बिल्कुल नामुमकिन है जनाब गौहर साहब, आप गलत बोल रहे हैं। हैरत है कि आप इन चीज़ों पर इस तरह की कोई बात करते हैं क्या? क्या आप मोहल्ले में ज़माने में अल्लाह के नबी इस्लाम खातिर एक नबी ने भेजा है क्योंकि कौम में आज आपको देख लीजिए कौम की कितनी बिगड़ी हुई हालत है। क्या इस वक्त में की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी इसलिए हमें अल्लाह ने नबी इस्लाम खातिर अल्लाह ने एक नबी नया भेजा है। देखिए इंजीनियर साहब, आपने सारे मतलब गलत समझा है, सारे मतलब गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम लोगों के सरदार और उनकी ऐसी इबादत और अथॉरिटी की वजह से आपने यह मोहर लगा दिया है। अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी तो मेरे अंडर में रहकर जारी होगी, डायरेक्ट कोई नबूवत नहीं होगी। यानी आपने अपने माता पिता में रहते हुए बाकायदा नबूवत पर मोहर लगाई है। अच्छा तो ये बात है, अगर ये बात है तो वाकई बड़ी महफूज बात है कि हमारे नबी सबके सरदार पे रहे और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आपका मातम हुआ और मातम पर रहने आपकी मौत होने की दलील है। एक और बात सुने, हज़रत का ऐसा कहना है वो आपका माता पिता ना होगा। जी हाँ, अब तो मेरी समझ में बात आ गई, अच्छी तरह आ गई, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ भी इससे मिलती जुलती बात है कि जब अदर पढ़ता है और धर्म अपना करता है तो इस धरती पर भगवान का धर्म किसी पर मंशू के रूप में अपना रूप भरता है और खुदा की इस्लाह करता है, भक्तों का सर्वनाश करता है। आपका मतलब जैसा किसी तारीख के तौर पर यह तय किया आप इंजीनियर है तो ऐसे बात कोई इंजीनियर नहीं होगा जरूर होगा, मगर ये बात तारीख कही जाती है इससे दूसरे इंजीनियर पर बड़ा नहीं पड़ता। अच्छा गौर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई। अब आप उस नबी का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हम कुछ सोच सके। वो नबी अल्लाह करने वाला मानने वाला मुहद्दिस मुजद्दिद है। खुदा इस लोगों के दरगाह हैं और दुआएं कर जाते हैं, आप मुस्तजाब का होती है। तो हमें ऐसे नबी पर जरूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ, कहीं इंतजार हिदायत कर लो। अराकी गुनगर पागल समझो है, हम अपनी मौजूदा को देना अब हमारा मौजूदा पर रहेगा बात करो। बेटा हमें कल होई ना साहब तो रुको नहीं बुलाया है क्या बात है साहब लोग आते ही मिल सके हम फाजल करना दज्जाल में फाजल में हमारे दिल की बातें नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें ज़बान संभाल कर बोलना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं और मैं उनको मान चुका हूँ। चाचा हजरत क्या आपने उसको मान लिया? क्या आपको पता नहीं है मिर्जा कितना बड़ा कमीना है? अगर मालूम नहीं तो सुनी मिर्जा बाद यानी अंग्रेजों का कुत्ता था, उनके टुकड़ों पर पलना था, उसी की गाला था जिस वक्त से अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के फतवे की बुनियाद पर सारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान जिहाद कर रहे थे। इस वक्त अंग्रेजों ने इस्लाम को नबूवत का ताज पहनाया और उसने जिहाद के हराम होने का फतवा दिया। आप अप टू डेट है ना तो बडोलीम की तारीख देखिए, उसमें लिखा है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों के बढ़ते हुए सैलाब को देखकर उन्हें फूट डालने की कोशिश की, जैसा कि उनका तरीका था। डेविड एंड रोज उसके लिए लंदन में मीटिंग हुई कि कोई नबी बनाया जाए ताकि जाहिल मुसलमान इस तरफ झुक पड़े। इस मिशन को लेकर अंग्रेजों ने मुसलमानों को तैयार करने की कोशिश की, मगर कुर्बान जाए मुसलमानों के ईमान पर कि उन लोगों ने साफ साफ कह दिया हम जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, खानदान को दांव पर लगा देंगे, हमेशा की तरह बीवी और बेटे तक कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबूवत का दावा हमारे बस की बात नहीं। ये तो उस नबी की शान थी जो 1400 साल पहले तशरीफ लाए थे। आखिर में अंग्रेज लोग उसको मौत से मिले, उसने दौलत की लालच में सब कुछ मान लिया। उस तारीख में भी लिखा है कि जब उसको बड़े अफसर के पास ले गए तो मुंह फेर लिया और कहा इस उल्लू के पट्टे को पकड़ लाए। अरे नबी का चेहरा ही कम से कम ऐसा होता है जिसे देखकर हजारों जन कुर्बान और हजारों दिल ईमान ले आ गए, जबकि ऐसा कालिया ही नहीं बालिके खाना भी है। उसकी तो एक बत्ती भी गायब है। जब हम एक बड़े वाली गाड़ी को रास्ते पर चलने नहीं देते तो उसको कौन चलने देगा? उसका फैसला है संसिवाई हो। जब ऐसी बात हो गई नबी कैसे बना दी गई? क्या आपको मालूम नहीं कि मजदूरी का नाम महात्मा गांधी है, इसी तरह उसे बनाया गया है? अरे चाचा ये सच तो छठा हुआ बदमाश चोर तक पक्का सानी और एक नंबर का धोखा था। हजारों झूठ बोलना तो अंग्रेजों से पैसे लेते हैं और बेशुमार झूठ दावाए नबूवत में बोला है जो तारीख के सिफात में मौजूद है। अरे साहब हमारे रसूल अलैहि सलाम ने तो 15 झूठ बोले हैं, इतना सा झूठ से
बताइए आपकी बेटी ने बरकत लिया कि नहीं? अगर नहीं तो आप तुम बताइए, और अगर लिया है तो बताइए किसी वक्त। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मेरी बेटी क्यों जाए? क्या मैं इतना गिर गया कि मैं अपनी बेटी दे देता? अरे उन्होंने मुझे 3 लाख रुपए और 1 कलर टीवी दिया है, इसलिए मैं उनकी तबलीग कर रहा हूँ और उन पर ईमान भी रखता हूँ। उसने तो अपनी माँ से भी एक मर्तबा जिना किया था, चूंकि वो मालिकों का मरीज था, इसलिए उसे कुछ पता न चला और मुंह कर गया। अब हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आप झूठे हैं। मिर्जा ने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। अफसोस है आप मौलाना आकर झूठ बोलते हैं, झूठे का कोई एतबार नहीं। अरे कम वक्त झूठ बोलो तुम लोग। क्या मैंने एक झूठ बोला तो बिदक गए और मेरे मौलाना होने पर तुहमत और इल्जाम लगाने लगे? और जिसने बेशुमार झूठ बोला है, क्या उसे नबी होने का तुम यकीन रखते हो? क्या वह नबी हो सकता है? वो तो कुत्तों से भी गिरा हुआ होगा जो झूठा हो और नबी होने का दावा भी करता हो। अब तो देखते हैं खूब हमारे छोरों का इस्तेमाल करो कि तुम्हारी तरह थोड़ी हो ये छोकरा जाकर भी पढ़ा मतलब पढ़ा। अगर ये देवबंद मतलब पढ़ते ना तो मैं काम बोलता ना हमारे मत तो हर समय तो आ जाता नहीं मतलब बता रही हूँ। खातिर नबी को मतलब बता वो तो बता दूंगा, जरा सा और सुन लीजिए। उस नालायक ने यहाँ तक कहा कि मेरी बेवसत सानिया है, यानी वो मोहम्मद जो 1400 साल पहले आए थे वही मुझ में रूप धार लिए हैं, यानी ये शख्स अवतार के अकीदा का भी कायल था, आगोन का भी कायल था, जो खालिस हिंदुओं का अकीदा है। उस कज़्ज़ाब ने किताबुल फ़सरिया 76 पर लिखा है कि आवाइन खुदा तेरे अंदर उतर आया। रूहानी ख़ज़ाइन में लिखा है कि तू मुझ में समाया हुआ है और मैं तुझ में समाया हुआ हूँ। आगे सुनिए, खुद वो अल्लाह की बीवी भी कहता है, उससे बढ़कर कहता है अल्लाह ताला ने मुझ पर रजूलियत की कुव्वत यानी कुव्वत मर्दानगी का इजहार फरमाया और खुद ही लिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा काफी है। लगता है मैंने आप जिनका काफी मेहरबानी फरमाना तो सुनाइए, आपकी बातें बड़ी अजीब और दिलचस्प हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुछ पढ़ा है, इसमें से चंद सुनिए। ये शख्स खुद कभी हामिला, कभी मरियम, कभी ईसा, कभी अल्लाह का नुतफा बनता है। ये लिखता है बहुत मिलन बख्श चाहता है कि तेरा हैज देखे, तुझ में हैज नहीं बल्कि वो बच्चा होगा जो बमंज़िला इक़बालुल्लाह अल्लाह है। एक जगह लिखता है कि मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नज़र की गई, और इस तारा के रंग में मुझे हामिला ठहरा दिया गया और आदम के महीना के बाद जो 10 महीना से ज्यादा नहीं बस लिया उस इल्हाम के मुझे बनाया गया और अवतार होना तो वही आई आदमीन को ठीक बैठा सोच लीजिए, ये नबी हो सकता है? मैंने का मतलब पता चलिए ताकि और खातिमुन नबिय्यीन का मतलब है कि आपके बाद कोई नबी सच्चा नहीं होगा। छोटा अपनी मिट्टी पर यूज कर करे, उससे हमारे नबी पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 100 आयतों से 200 हदीसों से खातिमुन नबिय्यीन का यही मतलब है कि आपके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। खुद मिर्जा भी पहले यही कहता था, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्मुल मुरसलीन के बाद किसी दूसरे मुद्दई मुहम्मद रसूलुल्लाह को का दर्जा रखता हूं। हमने बड़े गिनती की है, अल्लाह माफ फरमाए। भाई गौर साहब, आपका क्या ख्याल है? कादियानी में भी दिल से तौबा करता हूँ, मैं लालच में पड़ गया था और फिर सबके सब मैच का हाथ बंद करना पड़ेंगे। सलाम दुआ के बाद रुखसत हो जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।